Good morning, students. I am Meenakshi Agarwal. I am going to teach you your second lesson, A Letter to God. This lesson has been written by G.L. Fuentes. He was a great Mexican novelist and essayist. His writings have influenced contemporary literature. His works have been widely translated into other languages, and he had written many famous books: The Death of Artemio Cruz, Aura, Terra Nostra, and Old Gringo, and Christopher Unborn. And he was awarded for his notable work in literature. This lesson is about a poor farmer named Lencho. Lencho was very hard-working and he had a firm belief in God. One year his harvest was totally destroyed due to hailstorm, and there was no one to help him. He writes a letter to God and asks him to send him money. When his letter reached the post office, the postmaster was surprised to see the letter addressed to God. And he opened the letter and he read the letter. The postmaster was a very gentle and kind-hearted person. So he decided to send some money to Lencho. He collected some money from his staff and he himself gave some amount and sent that money to Lencho. But when Lencho counted the money, he was angry and he wrote another letter to God and advised him not to send the money through post. And he said that he should send the money directly because the post office employees are a bunch of crooks. समझ में आया बच्चों? Now we are going to start the lesson. The house, the only one in entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of the ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The house, the only one in the entire valley. That house was the only one in the entire valley. Entire means puri. Valley means khati mein. Sat on the crest of a low hill. This house, situated on the crest. Crest means peak of a low hill. Low means नीची. Hill means पहाड़ी. Means लेंचो का मकान उस इंटायर वैली में एक इकलौता मकान था और वो एक छोटी सी पहाड़ी के शिखर पर स्थित था. From this height one could see the river and field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. From this height माने उस ऊंचाई से one could see the river, कोई भी नदी को देख सकता था, and the field of ripe corn, और पके हुए अनाज के खेतों को देख सकता था, dotted with the flowers that always promised a good harvest. जिसमें डॉट माने क्या होता है? छोटी सी बूंदी. यहाँ पर क्या मतलब है? जो फसल लगी हुई थी उसमें जगह जगह पर थोड़ी थोड़ी दूर पर फ्लावर्स आ चुके थे और जो कि एक अच्छी फसल का वादा कर रहे थे. बच्चों, जब कोई पेड़ होता है तो उसमें पहले फूल आते हैं, फिर उसमें फूल से फल बनता है या अनाज बनता है. तो उसी तरीके से जो लेंचो का मकान था उसके मकान से दूर दूर तक आप रिवर देख सकते थे और पके हुए अनाजों के खेत देख सकते थे जिसमें जगह जगह पर छोटे छोटे फ्लावर खिले हुए थे और जो एक अच्छी स्वस्थ फसल का वादा करते थे. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, has done nothing else but seen the sky towards the northeast. The only thing the earth needed,
एकमात्र चीज जिसकी अर्थ को आवश्यकता थी वॉज ए डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। डाउनपोर मीन्स बारिश, शावर मतलब हल्की सी बारिश की फुहार। तेज बारिश की जरूरत नहीं थी खेतों को, कैसी एक हल्की सी बारिश की उसे आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग माने पूरी सुबह। लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था। इंटीमेट फ्रेंड होता है, क्या मतलब होता है उसका बच्चों? अंतरंग मित्र, मतलब जिससे आपका बहुत क्लोज रिलेशन हो। तो एक किसान का अपने खेत से बहुत क्लोज रिलेशन होता है। वो अपने खेतों की हर बात को, पेड़ पौधों की हर भाषा को समझता है। तो लेंचो का भी यही था। लेंचो अपने खेत को बहुत अच्छी तरह से जानता था कि कब उन्हें किस चीज की जरूरत है। हैज डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, इसलिए उसने सुबह से कुछ नहीं किया था, सिर्फ वो क्या कर रहा था? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की दिशा की तरफ। स्काई मीन्स आसमान को देखता रहा था। मीन्स सुबह से वो लगातार आसमान की ओर देख रहा था। क्यों देख रहा था? इस उम्मीद से कि बादल आए और हल्की सी बारिश हो जाए, और बारिश हो जाएगी तो क्या होगा? उसके खेत में जो फसल है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, और वो फसल बेच करके वो क्या करेगा? उसे पैसे मिलेंगे और वो अपने हर आवश्यकता की चीजों को खरीद सकेगा। इतना समझ में आ गया बच्चों? में आ गया? Now we were really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." The other boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, "Come for dinner." It was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky, they are new coins, the big drops of 10 cents pieces, and the little ones are fives. Now we are really going to get some water." We किसके लिए? लेंचो एंड हिज फैमिली। वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। लेंचो सुबह से क्या कर रहा था? ही वॉज वॉचिंग द नॉर्थ ईस्ट स्काई। वो उत्तर पूर्व दिशा में आसमान को ताक रहा था। अचानक उसे क्या दिखा? बादल आते हुए दिखे। तो उसने अपनी फैमिली से, अपनी पत्नी से कहा, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमेन। उसने अपनी पत्नी को कहा कि अब निश्चित रूप से हम लोग कुछ पानी पाने जा रहे हैं। पानी पाने जा रहे मीन्स अब बारिश होने वाली है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। और उसकी पत्नी जो सपर तैयार कर रही थी, सपर माने रात्रि का भोजन, और लंच जो सुबह से क्या कर रहा था? सुबह से लेकर रात तक आसमान की ओर ताक रहा था। तो देखते देखते रात हो गई, और रात में उसकी पत्नी जब भोजन पका रही थी तो उसने बताया कि बादल आ रहे हैं, अब हमें बारिश के पानी की प्राप्ति होगी। तो द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। उसकी पत्नी ने कहा, जो कि रात का भोजन तैयार कर रही थी, हाँ यदि ईश्वर ने चाहा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। जो बड़े बच्चे थे वो खेत में अब भी काम कर रहे थे। while the smaller ones were playing near the house, और जो छोटे बच्चे थे वो क्या कर रहे थे? घर के पास खेल रहे थे। until the women called them all come for dinner, और तब तक वो खेलते रहे जब तक कि उन बच्चों की माँ ने, उस स्त्री ने उन्हें रात्रि का भोजन करने के लिए आवाज नहीं दी कि आओ बच्चों खाना खा लो। It was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. It was during the meal. जब वो लोग भोजन कर रहे थे, just as Lencho had predicted, जैसा कि लेंचो ने predicted माने भविष्यवाणी की थी,
Big drops of rain began to fall. बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. और उत्तर पूर्व दिशा में बड़े बड़े बादलों के पहाड़ आते हुए दिखाई पड़ने लगे. मीन्स दूर से उन्हें दिख रहा था कि जैसे बहुत बड़े बड़े बादलों के पहाड़ उनके खेत की तरफ चले आ रहे हैं. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. और जब बादल आ रहे थे उनके साथ साथ क्या हो रहा था, जो हवा चल रही थी वो बहुत ही ताजी और मधुर लग रही थी. मतलब वो हवा बहुत ही अच्छी लग रही थी शरीर को. The man went out no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. और वो व्यक्ति, कौन व्यक्ति है वो? लेंचो. अकारण नहीं, मतलब for no other reason, किसी और कारण से नहीं, अपितु to have the pleasure of feeling the rain, बल्कि अपने शरीर पर बारिश की बूंदों के आनंद को महसूस करने के लिए घर से बाहर निकल गया. जैसे छोटे बच्चे बारिश को देख एक्साइटेड हो जाते हैं, भीगना उन्हें पसंद आता है, वैसे ही लेंचो ने जब देखा कि बादल आ रहे हैं तो खुशी के मारे बारिश की बूंदों को अपने शरीर में महसूस करने के लिए वो भी घर से बाहर निकल गया. एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड. और जब वो घर के अंदर घुसा तो उसने क्या कहा? एक्सक्लेम्ड, खुशी से चिल्लाते हुए कहा, These are not raindrops falling from the sky. अरे अरे, ये बारिश की बूंदें आसमान से नहीं गिर रही हैं. They are new coins. ये तो नए नए सिक्के गिर रहे हैं. The big drops are 10 cent pieces and little ones are 5. जो बड़ी बूंदें हैं बारिश की वो 10 सेंट के बराबर हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के बराबर है. मीन्स ऐसा क्यों कहा लेंचो ने? क्योंकि बारिश के कारण फसल अच्छी होगी और जब फसल अच्छी होगी तो वो उस फसल को बेच करके अपने लिए पैसे कलेक्ट करेगा और घर में अपने परिवार के लिए और अपने लिए और अगली फसल के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं वो खरीद सकता था. इसलिए उसने बारिश की बूंदों की तुलना किससे की? सिक्कों से. 10 सेंट और 5 सेंट के सिक्कों से किया. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly, a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower. बहुत ही संतुष्ट भाव के साथ, एक्सप्रेशन माने भाव, बहुत ही संतुष्ट होकर के, क्योंकि उसके खेत को पानी की जरूरत थी और बारिश हुआ तो बहुत ही वो संतुष्ट था. He regarded the field of ripe corn with its flower. वो अपने पके हुए अनाज के खेतों की ओर और उसके फूलों की ओर देख रहा था. Draped in a curtain of rain. उसने देखा कि पूरा खेत बारिश के बादल की चादर में या पर्दे में ढका हुआ है. But suddenly a strong wind began to blow. लेकिन तभी अचानक मौसम बदल गया. जो मधुर, जो मृदुल हवा चल रही थी वो किसमें बदल गई? तेज हवा में बदल गई. A strong wind. Strong माने बहुत तेज हवा, जिसको हम कहते हैं आंधी. तेज हवा चलने लगी. And along with the rain, very large hailstones began. और अब बारिश के साथ बड़े बड़े क्या करने लगे? हेलस्टोन्स, ओले गिरने लगे. ओला जानते हो बच्चों? ओला जब बारिश के साथ गोल गोल जमी हुई बर्फ के टुकड़े गिरने लग जाते हैं. These truly did resemble new silver coins. और अब ये जो बारिश के साथ ओले गिर रहे थे वो कैसे लग रहे थे? चांदी के सिक्के, क्योंकि वो चमक रहे थे. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. और बच्चों को तो ये सब देख के अच्छा लगता है. बच्चों, आपको भी अच्छा लगता है ना? The boys exposing themselves to the rain. और बच्चे बारिश में निकल करके ran out to collect the frozen pearls. उन जमी हुई मोतियों को कलेक्ट करने के लिए दौड़ पड़े. जमी हुई मोतियों को क्यों कहा? क्योंकि वो गोल गोल आकार में थे. जमी हुई जो क्या थी? बर्फ थी, तो देखने में मोती जैसी लग रही थी. उसको कलेक्ट करने के लिए बच्चे
दौड़ गए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली। अब जब ओले गिरने लगे तो लेंचो को चिंता हुई और उसने कहा, अरे इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, लेकिन अब तो बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी से समाप्त हो जाए। मीन्स ये जो तेज आंधी है ये समाप्त हो जाए, जो ओले पड़ रहे हैं वो बंद हो जाए। It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. लेकिन हम जैसा सोचते हैं हमेशा वैसा नहीं होता ना, तो it did not pass quickly. ये तेज हवा और ओले जल्दी से समाप्त नहीं हुए। For an hour the hail rained on the house. 1 घंटे तक लगातार ओलों की बारिश होती रही। कहाँ? उसके मकान पर, उसके बगीचे पर, पहाड़ी के किनारे, अनाज के खेत में और पूरी घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। अब पूरा खेत ओलों से ढक गया था और छोटे छोटे जो ओले के टुकड़े थे वो क्या लग रहे थे? जो सॉल्ट मैंने नमक। जो आप लोगों ने कभी सॉलिड नमक देखा है? पिसा हुआ नमक तो अब सबके घर में आता है। क्या आपने खड़ा नमक देखा? तो उसे लग रहा था कि उसका पूरा खेत सफेद सफेद नमक की डली से ढक गया है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। और उन ओलों की चोट से पेड़ों के हर पत्ते झड़ चुके थे। कह रहा नॉट अ लीफ, एक भी पत्ती पेड़ पर नहीं रिमेन्ड माने बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। और जो अनाज लगे हुए थे पेड़ों पर वो पूरी तरह से नष्ट हो गए। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। जो फ्लावर्स थे, जो फूल खिले हुए थे, वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, वो भी पेड़ों से पौधों से झड़ गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। लेंचो की अंतरात्मा दुख से भर गई। मीन्स जो अभी तक इतना आशा कर रहा था कि पानी बरसेगा तो उसे अच्छे पैसे मिलेंगे, उसकी फसल अच्छी होगी, लेकिन अब वो बहुत उदास हो गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. जब तूफान रुक गया, आंधी रुक गई, तो अपने खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने बेटों से बोला, A plague of locusts would have left more than this. The hail had left nothing. This year we will have no corn. A plague of locust would have left more than this. Locust माने टिड्डी। कह रहे टिड्डियों की बीमारी यानी टिड्डियों का दल भी अगर आता तो कुछ तो छोड़ के जाता, लेकिन ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। बच्चों आजकल आप लोग पेपर में पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि भारत में टिड्डी आ गए हैं, फसल को नष्ट कर रहे हैं। टिड्डी क्या होता है? टिड्डी एक तरह का ऐसा जो है कीड़ा होता है जो फसल को देखते ही देखते चट कर जाता है, समाप्त कर देता है। तो लेंचो कह रहा है कि यदि मेरे खेत में टिड्डियों का अटैक होता, टिड्डी की बीमारी लगती मेरे खेत को, तो भी कुछ तो बच जाता, लेकिन इस ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इसलिए इस साल हमें कोई भी अनाज नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। वह रात बड़ी दुख भरी थी। सॉरोफुल माने दुख भरी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग। हम इतना काम करते हैं लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिलता। भाई किसान का काम बड़ा ही बेटा संघर्ष में होता है, बड़ा मेहनत का होता है। कभी बारिश से, कभी आंधी से, कभी तूफान से, कभी सूखे से उसके फसल को हमेशा नष्ट होने का डर रहता है, कभी बीमारी लग जाती है। तो कह रहे ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग। हमने इतनी कड़ी मेहनत की लेकिन हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। अब तो लगता है कि इस पूरे साल हमें भूखा रहना पड़ेगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, सभी के दिलों में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो उस घाटी के बीच में इकलौते मकान में रहते थे, यानी लेंचो और उनकी जो फैमिली थी, उसकी पत्नी और उसके जो बच्चे थे, सभी के दिल में एक ही उम्मीद अब बची थी। और वो उम्मीद क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की मदद। मीन्स
अब उन्हें किसी और की मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। उन्हें प्रकृति से भी कोई उम्मीद नहीं थी, खेत से भी कोई उम्मीद नहीं थी। खेत नष्ट हो गया था, प्रकृति ने अपने विभत्स रूप से मतलब ओले के माध्यम से, आंधी के माध्यम से उसकी फसल को नष्ट कर दिया था। और वो उस घाटी में इकलौता मकान था जहां वो रहता था, यानी कोई भी अड़ोस पड़ोस में भी नहीं था। तो अब उनके लोगों के दिल में किसकी एक उम्मीद थी? ये उम्मीद थी कि अगर कोई उनकी मदद कर सकता है तो वो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं और उसके अलावा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। Don't be so upset. Even though this seems like a total loss, remember no one dies of hunger. That's why they say no one dies of hunger. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what in deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the field, but still he knew how to ride. The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. यद्यपि लेंचो बहुत दुखी था, उदास था, उसकी सारी मेहनत पे पानी फिर गया था, फिर भी वो अपनी फैमिली को दिलासा देते हुए बोला, डोंट बी सो अपसेट, परेशान मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, भले ही लग रहा है कि सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन परेशान मत हो। रिमेंबर, इस बात को हमेशा याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, जैसा कि सब वो कहते हैं कि कोई भी इंसान, कोई भी प्राणी भूख से नहीं मरता। मीन्स ईश्वर ने जिसको जन्म दिया है उसके खाने की व्यवस्था वो करता है, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली वन ऑफ हिज होप, अब पूरी रात लेंचो अपनी एकमात्र उम्मीद के बारे में सोचता रहा। मीन्स उसे भगवान से ही उम्मीद थी। अब भगवान से उम्मीद तो थी, लेकिन भगवान से सहायता कैसे मांगी जाए, वो इस विषय में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, अब सोच रहा था कि ईश्वर से मदद लेनी है, लिए कैसे? हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था कि जिसकी आंखें यानी ईश्वर की आंखें, सी एवरीथिंग, वो सब कुछ देखती हैं, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, वो सब भी देख लेती हैं जो किसी इंसान के हृदय में, उसकी आत्मा में होता है। कॉन्शियस मीन्स आत्मा, सोल, तो जो हमारे मन में होता है भगवान उसको भी जान जाते हैं, उनसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती है। लेंचो वॉज एन एक्स ऑफ अ मैन, ऑक्स, ऑक्स माने क्या होता है? बैल। तो कह रहे लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो इंसान के रूप में बैल की तरह था। मीन्स जैसे बैल बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, वैसे वो भी बहुत कड़ी मेहनत करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वो अपने खेत में जानवरों की तरह मेहनत किया करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसे लिखना भी मालूम था। मतलब ऐसा नहीं था कि वो अनपढ़ था, इलिटरेट था, वो ये भी जानता था कि लिखा कैसे जाता है। द फॉलोइंग संडे at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. अगले संडे को, फॉलोइंग संडे माने अगले संडे को, at daybreak, सुबह सुबह, he began to write a letter, उसने पत्र लिखना प्रारंभ किया, which he himself would carry to town and place in the mail, जिसे वह स्वयं शहर जा करके अपने हाथों से लेटर बॉक्स में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और ये कुछ और नहीं था बल्कि ईश्वर के नाम लिखा हुआ सीधा सीधा एक पत्र था, जिसे उसने लिखा और खुद अपने हाथों से जाकर लेटर बॉक्स में डाल दिया। उसने पत्र में क्या लिखा? गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री।
हे ईश्वर, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. I need 100 pesos. मुझे 100 रुपए की आवश्यकता है. In order to sow my field, अपने खेतों में फिर से बीज बोने के लिए, और to live until the crop comes, और तब तक के लिए जब तक कि दूसरी फसल उग नहीं जाती. Because the hailstorm, क्योंकि ओले ने सब कुछ, इतना कह के उसने रोक दिया. क्यों? क्योंकि उसके मन में था ना कि ईश्वर तो सब कुछ जानते हैं, उन्हें ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है. उसने सिर्फ इतना ही लिखा, यदि आप मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार भूखा रह जाएगा, और मुझे ज्यादा पैसे भी नहीं चाहिए. मुझे सिर्फ 100 पैसों चाहिए, 100 रुपए चाहिए, जिससे मैं अपने खेतों में बुआई कर सकूं, और जब तक दूसरी फसल तैयार ना हो मैं अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं, क्योंकि ओले ने सब कुछ नष्ट कर दिया है. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. अब उसने क्या किया, लेटर लिखने के बाद एक एनवेलप लिया. एनवेलप में एड्रेस लिखना पड़ता है ना बेटा, जिसको भेजना होता है. तो उसने उसमें लिखा टू गॉड, ईश्वर के नाम. पुट द लेटर इनसाइड. फिर उस एनवेलप में टू गॉड का एड्रेस लिखने के बाद उसने लेटर को उसके अंदर डाल दिया. फिर परेशान सा वेंट टू टाउन, शहर गया. एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर. उसने उस लेटर के एनवेलप के ऊपर एक टिकट लगाया. बच्चों, बिना टिकट के चिट्ठी वापस आ जाती है, तो उसने उसमें एक टिकट भी लगाया. एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और लेटर बॉक्स में उसने उस लेटर को डाल दिया. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. अब उस पोस्ट ऑफिस में कई लोग काम करते थे. उनमें से एक जो पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस के कामों में मदद किया करता था, उसने जब लेटर बॉक्स से लेटर निकाला, उसमें टू गॉड एड्रेस देखा, तो हंसता हुआ अंदर गया और उसने लेटर को अंदर अपने ऑफिसर को दिखाया. Went to his boss, boss means जो उनका अधिकारी था, उसके पास हंसते हुए गया और उसने उन्हें वो पत्र दिखाया. Never in his career as a postman had he known that address. और उसने उससे, अपने बॉस से कहा कि अपने पूरे पोस्टमैन के करियर में टू गॉड इस तरह का पता मैंने आज तक नहीं देखा. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing. जो पोस्ट मास्टर था वो भी बहुत ही मोटा और फ्रेंडली था. मतलब वो अपने एम्प्लॉयज से बॉस होने के बाद भी अच्छा बर्ताव करता था, उनके साथ मित्रवत बर्ताव करता था. तो वो भी खुलकर हंसा. ब्रोक आउट लाफिंग माने बड़ी तेजी से हंसा. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस. लेकिन हंसा तो, लेकिन एक ही क्षण में वो अचानक बड़ा ही गंभीर हो गया. एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड. और पत्र को अपने डेस्क पर टैपिंग माने थपथपाते हुए बोला, What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. उसने कहा कितना विश्वास है, मतलब ईश्वर में उसका कितना विश्वास है, उसने टू गॉड लिख करके पत्र भी लिख दिया. I wish I had the faith of the man. काश मेरे अंदर भी इस आदमी के जितना विश्वास होता. Who wrote this letter, जिसने ये पत्र लिखा है. Starting up a correspondence with God. अरे इसने तो ईश्वर के साथ वार्तालाप शुरू कर दिया, पत्र व्यवहार शुरू कर दिया. करस्पॉन्डेंस मीन्स पत्र व्यवहार. इतना अधिक इसको विश्वास है कि इसने ईश्वर के नाम पत्र लिख दिया और इसे उम्मीद है कि ये ईश्वर के साथ इसका पत्र व्यवहार जो है कंटिन्यू रहेगा, ईश्वर इसकी मदद करेंगे. So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. इसलिए उस पत्र लिखने वाले का ईश्वर के प्रति विश्वास डगमगाए नहीं, मीन्स उसकी ईश्वर के प्रति जो आस्था है वो कम ना हो जाए. पोस्टमास्टर ने अपने दिमाग में विचार किया, मतलब उसके दिमाग में एक ख्याल आया. आंसर द लेटर, कि इस पत्र का उत्तर दिया जाए, क्योंकि अगर इस पत्र का उत्तर नहीं दिया जाएगा
तो उसका जो विश्वास है ईश्वर के प्रति वो टूट जाएगा। वो सोचेगा कि भगवान के पास भी पत्र लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो उसने कहा कि हम लोग उसके पत्र का भगवान की तरफ से उत्तर देते हैं। बट व्हेन ही ओपनड इट, और जब उसने उस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। और जब उसने पत्र खोला तो उसने पढ़ा, उसमें पत्र में क्या लिखा था कि उसे 100 पीसों चाहिए। तो उसने देखा कि इट वॉज एविडेंट, अब उसे स्पष्ट हुआ कि उस पत्र का उत्तर देने के लिए केवल सद्भावना, गुडविल माने सद्भावना की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कुछ और की भी आवश्यकता है। यानी उसके पत्र का उत्तर देने के लिए कागज, पेन और कुछ अच्छे शब्दों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सचमुच कुछ पैसों की भी आवश्यकता है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन माने निर्णय, स्टक माने अडिग रहा। वो अपने निर्णय में, अपने फैसले में अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। उसने अपने साथ काम करने वाले जो एम्प्लॉयज थे उनसे पैसे मांगे। हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। उसने अपने वेतन का भी कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर obliged टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और साथ ही साथ उसके जो दोस्त थे उन्हें भी इस चैरिटी के, दान के काम के लिए कुछ देने में अच्छा लगा। ओब्लाइज माने अपने आप को उन्होंने ग्रेटफुल, एहसानमंद समझा कि वो भी किसी की मदद करने के काम आ सके। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पीसेस। लेकिन फिर भी 100 पैसे इकट्ठा, 100 रुपए इकट्ठे करना इम्पॉसिबल था, असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ। इसलिए वो उस किसान को उसकी आवश्यकता के अनुसार आधे से थोड़ा ज्यादा, यानी उसकी आवश्यकता कितनी थी बच्चों, 100 पीसों, तो आधे से कुछ ज्यादा ही भेज पाया, यानी 50 से कुछ ज्यादा भेज पाया, 100 नहीं भेज पाया। He put the money in an envelope। उसने जो पैसे कलेक्ट किए थे सबसे, उसे इकट्ठा करके उस एनवेलप में डाला। एड्रेस टू लेंचो, और उसमें लेंचो का पता लिखा। एंड विद देम अ लेटर मोर देन हाफ। और फिर उसके बाद उसने एक पत्र लिखा। He put the money in an envelope। उसने एनवेलप को, उसने पैसे को भी एनवेलप में रखा। एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो को संबोधित करते हुए लिखा। विद देम अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड। और उसने उस पत्र में सिर्फ एक ही शब्द लिखा, गॉड। मतलब पत्र के अंदर उसने और कुछ नहीं लिखा, सिर्फ गॉड, मीन्स जिसमें लेंचो को लगे ये पत्र कहाँ से आया है, ईश्वर से आया है। वो पोस्टमास्टर इतना दयालु था कि उसने अपने स्टाफ के लोगों से पैसा इकट्ठा किया, अपनी सैलरी में से किया, अपने दोस्तों से इकट्ठा किया, और जितने पैसे हो गए थे, हालांकि 100 नहीं हुए थे, फिर भी जितने हुए थे उसने उसको क्या किया बच्चों, एनवेलप में रखा। और एनवेलप के अंदर एक कागज में उसने एक पत्र लिखा। पत्र में कोई बात नहीं, सिर्फ एक शब्द लिखा, गॉड, जिसमें लेंचो को लगे कि ईश्वर ने ही ये उसे पैसे भेजे हैं। और वो सब रखकर उसने लेंचो का एड्रेस लिखा और उसके पास भेज दिया। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from the doorway of his office. द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, यानी पिछले संडे को उसने डाला, उसके अगले संडे में वो आया। लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क। वो हमेशा से थोड़ा जल्दी ही उस पोस्ट ऑफिस में आया। किस लिए, टू आस्क, ये जानने के लिए, इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र है। यानी ऑफिस के खुलने का जो टाइम होता है उससे पहले से ही वो वहां पहुंच गया और उसने क्या पूछा कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज अ पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। और वो पोस्टमैन जो था, जिसने उसके पत्र को ले जाकर बॉस को दिखाया था, उसने अपने हाथों से उसे एक पत्र दिया और कहा, हाँ, आपके नाम का एक पत्र है। वाइल द पोस्ट मास्टर, और जबकि उसका जो पोस्ट मास्टर यानी जो उसके ऑफिस का हेड था, एक्सपीरियंस से बना
अनुभव करते हुए द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, कंटेंटमेंट माने संतोष की भावना, तो उस आदमी की तरह संतोष की भावना का अनुभव कर रहा था जिसने एक अच्छा नेक काम किया है। मीन्स उस पोस्ट मास्टर को लग रहा था कि किसी गरीब की मदद करके उसने एक अच्छा नेक काम किया है, तो उसके एक्सपीरियंस को, उसके चेहरे के हाव भाव को देखने के लिए लुक्ड ऑन हिम फ्रॉम डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस के दरवाजे पर, एंट्रेंस पर खड़ा होकर उसके चेहरे की प्रतिक्रिया को देखने के लिए खड़ा हो गया। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence. लेंचो ने जब एनवेलप खोला और उसने उसमें पैसा देखा तो स्लाइटेस्ट सरप्राइज, उसे जरा भी तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ। Such was his confidence, क्योंकि उसे इतना पक्का भरोसा था ईश्वर में कि यदि वो ईश्वर को पत्र लिखेगा तो ईश्वर उसकी मदद करेंगे। तो पैसे देखकर उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसे ये नहीं लगा कि अरे मैंने तो मजाक मजाक में लिख दिया था, यहाँ तो पैसा सच में आ गया। नहीं, उसका ईश्वर के प्रति भरोसा ही इतना गहरा था कि उसे मालूम था कि पैसा जरूर आएगा। तो जब उसने पैसा देखा तो उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन उल्टा हो गया जब उसने पैसा गिना। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे, काउंटेड मीन्स गिने, ही बिकेम एंग्री, वो नाराज हो गया, उसे गुस्सा आ गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैज रिक्वेस्टेड। उसने कहा ईश्वर से कोई गलती नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने 100 मांगा था और ईश्वर उसको पढ़ने में उनसे गलती हो गई, उन्होंने कम पैसे भेजे हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। फिर ईश्वर के पास तो बहुत पैसा है, वो तो सारी दुनिया के मालिक है ना। तो ही कुड नॉट डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, उसने जो मामूली सी रकम मांगी थी ईश्वर उसे देने से इनकार नहीं कर सकते। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। गुस्से में वो तुरंत कहाँ गया, पोस्ट ऑफिस की खिड़की पर गया और उनसे कहा मुझे कागज और पेन दीजिए, इंक दीजिए, स्याही दीजिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और वहीं जहाँ पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ कुछ लोगों के बैठने पत्र लिखने की भी सुविधा होती है ना बच्चों, तो वहाँ पर वहीं पब्लिक जो राइटिंग टेबल था जहाँ पर आम जनता जाकर अपने लेटर लिख सकती थी, उसमें स्टैंप लगा सकती थी, वहीं जाकर वो बैठ गया। ही स्टार्टेड टू राइट, और उसने लिखना शुरू किया विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। और जब वो लिख रहा था तो उसकी जो भवें थी बहुत रिंकल हो रही थी, सिकुड़ रही थी, वो उसे गुस्सा आ रहा था, उसे लग रहा था कि देखो उसके साथ बड़ी बेईमानी हो गई है। तो वो अपनी भावों को सिकुड़ सिकुड़ करके कह रहा था कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडिया। और उसे ये क्यों आ रहा था, गुस्सा क्यों आ रहा था, कॉज्ड बाय द एफर्ट, उसे कोशिश करनी पड़ रही थी। ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज, उसे अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी, मतलब ईश्वर से बताने के लिए कि वो क्या कहना चाहता था। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने पत्र समाप्त कर लिया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय स्टैम्प, उसने जाकर के खिड़की पे जाकर के एक स्टैम्प, एक टिकट खरीदा। विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप, जिसे उसने अपने जीभ से चाटा। बच्चे बहुत गंदी आदत होती है लेकिन अधिकतर ये करते हैं। तो लेंचो ने उसे लिक किया, अपनी जीभ से गीला किया, चाटा उसके पीछे वाले पोर्शन को। एंड देन अफिक्स टू द एनवेलप, और फिर उसे एनवेलप में चिपका दिया विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। कैसे, एक घूसा मार करके, ऐसे ऐसे करके करते हैं ना, कोई चीज चिपकाना होता है तो आप लोग भी फोटो पे चिपकाने के लिए अपनी मुट्ठी से उसमें ठोकती हैं। तो उसने भी क्या किया, एक घूसे के प्रहार से एनवेलप में उसको फिक्स कर दिया। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स ऑफ द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, इट सेड, जैसे ही वो लेटर उस लेटर बॉक्स में गया, यानी जैसे ही लेंचो उसको वहां से डालकर हटा, पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर ने जाकर के उसे निकाला और उसे खोल दिया। इट सेड, उसने उसमें देखा कि उसमें क्या लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच मी। हे भगवान, मैंने आपसे जितने पैसे मांगे थे उसमें से केवल 70 रुपए मेरे पास पहुंचे। मीन
मैंने तो आपसे 100 रुपए मांगे थे और आपने जरूर 100 ही भेजे होंगे, लेकिन मेरे पास कितने पहुंचे हैं? 70 रुपए पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। मुझे बहुत सख्त जरूरत है, इसलिए बाकी जो अभी कम है उसे आप भेज दीजिए, यानी 30 सेंट और भेज दीजिए, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। लेकिन इस बार पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, डाक के माध्यम से मुझे पैसा मत भेजिएगा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रुक्स। क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जो काम करने वाले हैं, कर्मचारी हैं, वो क्या है? बंच ऑफ क्रुक्स। वो पूरे ठगों का गुच्छा है। बंच माने गुच्छा, मतलब सारे ठग एक साथ वहां पर बैठे हैं, सारे ठगों का समूह है। आप उनके द्वारा मुझे पैसा नहीं भेजिएगा। लास्ट में लेंचो, अब मैं लेंचो आपको ये बता रहा हूँ कि आपके भेजे पैसे में से उन लोगों ने पैसे चुरा लिए हैं, इसलिए इस बार पैसा आपको सीधे भेजना है, डायरेक्ट मेरे पास भेजना है। उन पे भरोसा मत करिएगा, ये सारे के सारे ठगों का समूह है। बच्चों, आपको ये लेसन कैसा लगा? मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग था, और आप ये लेसन जो है और अच्छे से, आपके पास बुक है, पढ़िएगा, और साथ ही साथ इसके जो कॉम्प्रिहेंशन है, जो इसके ग्लॉसरी में जो वर्ड्स हैं उनकी इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग भी याद कर लीजिएगा, स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, और शॉर्ट आंसर इसके आपके एग्जाम में आते हैं उसको कर लीजिएगा। बाकी जो हम लोग मिलते हैं तो और सब करते हैं, जो नहीं समझ में आएगा, और शॉर्ट आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। कॉम्प्रिहेंशन एग्जाम में आपके आता है, तो कॉम्प्रिहेंशन करिएगा, शॉर्ट आंसर करिएगा, लॉन्ग आंसर हम बाद में लिखवाते रहेंगे। वर्ड मीनिंग याद कर लीजिएगा, तो वर्ड मीनिंग से आपका वोकैबुलरी वाला पोर्शन तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।